न्यूज, सच जरूरी। नमस्कार दर्शकों, मैं शीबा शेख और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका देश की खबरों में। आइए एक नजर डालते हैं हेडलाइंस की। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने परिवार संघ किए कामाख्या देवी के दर्शन। बांग्लादेश में चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल। बिग बॉस 13 की अभिनेत्री शेफाली जरीवाल का निधन। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने परिवार संघ कामाख्या देवी के दर्शन किए। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज गुवाहाटी के नीलाचल पर्वत पर स्थित कामाख्या मंदिर में दर्शन किए। वह अपने परिवार के साथ पहुंचे और देवी कामाख्या की पूजा अर्चना कर राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। ये मंदिर शक्ति की उपासना का प्रमुख केंद्र माना जाता है और खासकर अंबुबाची मेले के दौरान यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं, जहाँ का ये दौर धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक का जुड़ाव प्रतीक माना जाता है। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बांग्लादेश में चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल। ढाका में मानवाधिकार और शांति के लिए बांग्लादेश की अध्यक्षता मंजीर मुर्शिद ने कहा कि पिछली सरकार के समय अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने जोर दिया था कि चुनाव में सभी राजनीतिक दलों की भागीदारी सुनिश्चित हो, लेकिन पिछले 3 चुनाव में प्रमुख विपक्षी पार्टी बीएनसी ने हिस्सा नहीं लिया, जिससे इस चुनाव की वैधता पर सवाल उठे। You see that earlier in international media and in Bangladesh media, the chief advisor always told that they are not going to ban the Awami League. It was his direct declaration, and I think it was his mental condition. Mentally, he was thinking that. But ultimately, there was when our ex-president Abdul Hamid left the country, then some of the student leaders and some of the government partners, they raised their voice and they demanding that immediately the activities and the party of Awami League should be banned. And they organized in the street hundreds of people, thousands of people. And you see all the movement, when you see in Bangladesh after 5th August, the government was not so strong to stop the movement, to stop the street movement. And ultimately what the demanded, many demands were fulfilled because of the pressure, and the government did not face the pressure. That is the one point. That's why when the NCP and others, Jamaat Islam and others people demanding that Awami League should be banned, and ultimately chief advisor with a calling with a meeting with the political party and then declared that the activities of the Awami League will be banned. And subsequently, if the activities of the Awami League is banned, that means Awami League is, cannot work. And if the political party cannot work, that means existence of the political party is nowhere. So if the government at this stage, because you see the internationally in last government, all over the international authority among organization told that there must be election in which all party must be participated. But in last 3 election, the BNP as a bigger party did not participate, and that's why election was not accepted. But in coming election, a big party is Awami League. If Awami League did not participate, and if the government don't give any chance to participate, in that case, I think internationally that election will be also questionable, because more than 30% supporter belongs to the Awami League. So a big portion of the people, excluding the election process, there cannot be a good election, and that cannot be accepted all over the world. But whatever might be, but if there is election, there will be a big change, there will be a big scenario change, because when a party will become in power, then the democracy will started, and we hope that everybody will be, they can demand that our democratic rights should be established. And the political party, what they think, of course they cannot deny other political party to function about their activities, because political party is thinking about the politics, about the democracy. But this government, they are not the political party. The chief advisor is not a political person. Let me ask a question. आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिग बॉस 13 की अभिनेत्री शेफाली जरीवाला का निधन। बिग बॉस 13 से लोकप्रिय हुई अभिनेत्री शेफाली जरीवाला का 42 वर्ष की
उम्र में निधन हो गया। अंधेरी के लोखंडवाला इलाके में उनका निवास स्थान है, जहां आज उनके परिवार, दोस्त और प्रशंसकों की भारी भीड़ देखी गई। यहाँ शोक की माहौल है और कई लोग उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने आए हैं। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। श्री राम मंदिर में अब सिर्फ 1 लाख घन फीट पत्थर का काम बाकी, बोले नृपेंद्र मिश्रा। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और अब इसमें एक अनूठा तकनीकी पहलू भी जुड़ गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि मंदिर की खिड़कियों की ग्रिल देश में पहली बार टाइमटेलियम धातु से बनाई जाएगी। मिश्रा ने के मुताबिक टाइमटेलियम की उम्र 1000 साल से भी अधिक होती है और ये अन्य धातुओं की तुलना में बेहद हल्की और टिकाऊ होती है। उन्होंने कहा कि ये निर्णय मंदिर को दीर्घकालीन संचालन और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। अभी बैठक में तो मुख्य रूप से जो निर्माण की गति है उसके बारे में प्रारंभिक सूचनाएं जो थी वो एकत्रित की हैं मैंने। आज विस्तार से हम पूरे निर्माण कार्य को देखेंगे। अब अनुमान यह है कि मंदिर और परकोटा, जिसमें लगभग 14 लाख क्यूबिक फीट, अनुमानित 14 लाख क्यूबिक फीट बंसी पहाड़पुर का पत्थर लगना था। अब अवशेष केवल 1 लाख क्यूबिक फीट रह गया है। बाकी सभी कार्य जो बंसी पहाड़पुर के पत्थर से मंदिर और परकोटा में किए जाने हैं, अनुमानित आप समझें कि 13 लाख क्यूबिक फीट का उपयोग किया जा चुका है। मंदिर में जो राम कथा लोअर प्लिंथ पे है, उसकी कुल लंबाई रनिंग फीट में लगभग 800 फीट है, जिसमें 500 फीट के ऊपर राम कथा के पत्थर, म्यूरल जिसको कहते हैं, वो लगाए जा चुके हैं। परकोटा में जो ब्रॉन्ज का म्यूरल लगना है, जो कुल मिलाकर लगभग 80 म्यूरल लगेंगे, 80 पैनल बनेगा, उसमें अब तक करीब 45 म्यूरल लग चुके हैं। तो यह कार्य भी प्रगति पर है। आपको सुनकर यह भी संतोष होगा कि भारत में, पूरे देश में पहली बार टाइटेनियम धातु की जो हमारे मंदिर में प्रथम तल, भूतल और द्वितीय तल पे बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, तो उन पर टाइटेनियम धातु से जो है जाली लगाई गई है, जो अपने में अनोखी है, क्योंकि आप जानते हैं कि टाइटेनियम का जीवन बहुत लंबा, मतलब आप यूँ समझें कि वह 1000 वर्ष से भी ज्यादा माना जाएगा। और वह धातु ऐसी होती है कि वह हल्की बहुत होती है, अन्य की तुलना में हल्की होती है। तो ये एक नया अनुभव किया गया। केंद्र सरकार की एक उपक्रम है, मिठानी मिश्रण धातु उपक्रम है, उन्होंने इस जाली को बनाया है और कुल मिलाकर के करीब 32 जाली लगेंगी, भूतल पे, प्रथम तल पे और द्वितीय तल पे।
उसका एक जाली लगकर उसका अनुभव कर लिया गया, अभ्यास कर लिया गया, उसे कल पास कर दिया गया और अब वो उसके अनुसार बाकी जालियां अनुमानित 15 अगस्त तक बनाकर और लगा देंगे। तो इस प्रकार जो जाली का काम है मंदिर में अवशेष और जो राम कथा का जो मैंने अभी आपको विवरण दिया, ये दो मुख्य कार्य हैं। हम यह तो नहीं कह रहे हैं कि बिल्कुल हमने जो शेड्यूल बनाया था उसके अनुसार प्रगति है, लेकिन हम आश्वस्त हैं कि जुलाई के अंत तक ये सभी निर्माण कार्य पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अभिनेत्री शेफाली जरीवाल का निधन, शव पोस्टमार्टम के लिए कपूर परिवार अस्पताल पहुंचा। कांटा लगा फेम अभिनेत्री और बिग बॉस 13 की चर्चित कंटेस्टेंट रही शेफाली जरीवाल के असमस निधन की खबरें से इंडस्ट्री सदमे में है। 42 वर्षीय शेफाली का पार्थिव शरीर मुंबई के कपूर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। अस्पताल परिसर में उनके परिवार, रिश्तेदार और करीबी दोस्त का आना जाना शुरू हो गया है। अभी तक मौत के कारणों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मौके पर पुलिस भी मौजूद है और औपचारिक जांच प्रक्रिया जारी है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। संजय राउत बोले 10 सालों से हो रहा कानून का दुरुपयोग। मुंबई में शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने एक बार फिर केंद्र सरकार और संवैधानिक संस्थाओं पर निशाना साधा है। राउत ने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों से देश में कानून और व्यवस्था का दुरुपयोग किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग जैसी संस्थाओं ने भी शिवसेना और एनसीपी, एससीपी के साथ न्याय नहीं किया। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये फैसले दबाव में किए जा रहे हैं और अगर हाँ तो कौन दबाव बना रहा है। तो न्याय व्यवस्था को यूज किया जाता है, खास करके ये 10 साल में हो गया है। ये चीफ जस्टिस साहब को मालूम होना चाहिए। जिस तरह से शिवसेना, बाला साहब ठाकरे की ओरिजिनल शिवसेना, शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, दोनों के ऊपर जिस तरह से न्यायालय ने भी अन्याय किया है, सुप्रीम कोर्ट ने अन्याय किया है, चुनाव आयोग ने अन्याय किया है और सब लोग चुप बैठे हैं। एक पार्टी जो बाला साहब ठाकरे जी ने बनाई, शरद पवार साहब ने बनाई, उस पार्टी को आप खींचकर हमारे हाथों से गलत तरीके से किसी और के हाथ में देते हो और हम आज भी तारीख पे तारीख के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाकर बैठे हैं। उस बारे में भी चीफ जस्टिस साहब ने सोचना चाहिए कि ये देश में क्या हो रहा है, न्यायालय पर किसका दबाव है। हाँ, ये निर्णय और ये फैसले नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को चाहिए, वो कौन दे रहा है और किसके दबाव में मिल रहे हैं, ये भी बड़ी बात है। सर का बयान है, आपको लगता है कि सीजीआई साहब उम्मीद कर सकते हो कि आपको इंसाफ मिलेगा? देखिए, हम इंसाफ की गुहार लगाई है, लेकिन अब तक सुनवाई नहीं हो रही। जब स्वतंत्र रूप से सुनवाई होगी तो हमें न्याय मिलेगा। धन्यवाद। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायल का चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायल ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि आयोग बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन की शुरुआत कर चुका है, जिसे अब पश्चिम बंगाल में भी लागू किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत जुलाई 1987 से पहले जन्मे लोगों को अपने जन्म और जन्म स्थान का प्रमाण देना होगा। जुलाई 1987 से दिसंबर 2004 के बाद जन्मे लोगों को अपने साथ दोनों माता पिता के जन्म और जन्म स्थान का प्रमाण देना होगा। उन्होंने बताया कि आरोप है कि यदि ये दस्तावेज 1 महीने के भीतर जमा नहीं किए गए तो मतदाता सूची से नाम हटा दिए जाएंगे। The EC, which we know, just a little bit of background, the special intensive revision of the electoral rolls starting in Bihar, and then they said they'll follow it up in Bengal. You already know what the new rule which they are proposing, new and existing voters before January 1987
will have to prove their birth and their birthplace if you were born before 1987. And another rule for people born between 1987 and 2004, they will have to provide their proof and birthplace along with one of their parents. People born after 2004 will have to submit proof of birth and birthplace for themselves as well as their parents. Unless you submit this in the next 1 month, your name will be deleted from the list. Our chairperson raised this issue first. See, the EC is a constitutional body. We respect that. But the EC has to report to the Constitution of India. The EC is not some temporal which can do whatever they want to do. So now questions are being asked. Is this really the Election Commission of India? And we say this with all respect to the constitutional body. So the constitutional body should not turn into the branch office of the BJP. The Trinamool Congress has the highest regard for the Election Commission of India as a constitutional body. Let me dwell on 3+1 points today in the press conference, and then Sagarika will take over. First, because this has been explained in detail by the chairperson of the Trinamool Congress, Mamata Banerjee, and the chairperson and the Chief Minister of West Bengal. So you know the background. First question we're raising today, and this is a new development. Why is this exercise being suddenly done right now? Why now? Bihar to 1 month and then the big one, Bengal. We have evidence that why it is being done now is because the latest BJP's internal survey for Bengal shows, when I say latest means it may be a few weeks old also, 46 to 49 seats BJP in Bengal. 46 to 49 seats is their number in Bengal if Bengal assembly polls are held. So, in their desperation to change or attempt to change things, you do these desperate things. This is our first charge. Who is conducting the surveys, where they are being conducted, all that information we are privy to. The National General Secretary of the All India Trinamool Congress last week or earlier this week put out a number from when he was making a speech in Diamond Harbour of below 50. That's where this number came from. 2. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। डीएम के प्रवक्ता बोले 2026 में एनडीए सरकार बनना सिर्फ कल्पना। तमिलनाडु में 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। डीएमके के प्रवक्ता सर्वरण अन्नादुरई ने भाजपा और एआईएडीएमके गठबंधन को टूटता हुआ समीकरण बताया है। उन्होंने बताया कि एनडीए की सरकार बनना सिर्फ एक कल्पना है क्योंकि गठबंधन खुद ही स्पष्ट नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब केंद्रीय मंत्री अमित शाह गठबंधन की सरकार का दावा करते हैं उस समय नेता कहते हैं कि जनता इस गठबंधन को स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा और एआईएडीएमके एकजुट नहीं है और डीएमके के खिलाफ उनकी राजनीतिक बिखरी हुई है। 2026 NDA forming a government here is a fantasy. It will not happen here in the state of Tamil Nadu. The alliance itself does not gel.
whether it is among the leaders or on the ground, there is absolutely no chemistry between the BJP and the ADMK parties. The leaders making statements contrary to each other's views. Mr. Amit Shah saying that there is going to be a coalition government, and the ADMK leaders, Mr. Vaige Selvan, claiming that the people of Tamil Nadu will not accept coalition governments. So we don't know what's going on. They are not able to. The main reason, one of the main reasons why the alliance is not able to get their act together is because they are not able to mount an attack on the DMK, an attack which will resonate with the people. People are happy here. There is a pro-incumbency wave in favor of the DMK party. So they are not able to have a coherent attack or a coherent policy against the DMK. That is the reason the alliance is not, the alliance is fumbling. This is going to continue, and we have all known how the BJP gobbles its allies. We have seen that happening in Maharashtra and various other states. That fate should not happen to the ADMK party. The ADMK leaders, selfish to protect their own interest, are betraying the interest of the ADMK cadres and the people of Tamil Nadu by allying with the BJP. So there has been a speculation following, like Amit Shah mentioned that Chief Minister candidate from ADMK, but he didn't mention the name of Edappadi K. Palaniswamy. On social media, there has been a speculation like who will be the CM candidate. ADMK says that DMK is twisting the statement. Even Nayanar Nagendran says that DMK is in fear after Amit Shah visits Tamil Nadu. See, there is a sinister motive behind all this. Calculated attempts. We all know it is the ploy of the BJP in every other state not to name a chief ministerial candidate. But here, ADMK is the bigger ally, and the ADMK claims EPS will be its chief ministerial face. But Mr. Amit Shah has deliberately omitted mentioning Mr. Edappadi Palaniswamy because there are rumors which say there are other party leaders who are aspiring to become the chief minister's face if Mr. Edappadi Palaniswamy does not listen, does not toe the line of the BJP completely. So we'll have to wait and see how this is going to pan out. But what we can clearly see is the selfish interest and the greed of the ADMK ex-ministers are sounding, or they are playing a death knell to the prospects of ADMK here in the state of Tamil Nadu. So ADMK once again raises concern over women's safety with a few incidents in Tamil Nadu. For example, in IIT there has been a sexual harassment against a 22-year-old girl. How DMK sees this? But see, it is become a fashionable thing to say that every crime that is happening in the state of Tamil Nadu pin it on the government. If that is the case, if that is how you do politics, then nobody can rule without any issues like this cropping up. The ADMK, if you look at the Twitter handles of all the prominent ADMK members, they'll say no to drugs. But the recent drug haul and the arrest of a famous actor points out how drug cartels have penetrated the ADMK's upper ring. The investigation is going on. We will come to know who are all involved in this and what moral right they've got to speak about drugs or law and order when they have all the rowdies. BJP has all the rowdies as their cadres, and now all the ADMK functionaries are caught violating the law. What business, what moral right they've got to speak about law and order? And we can assure you that DMK is a party which has never ever compromised on law and order, howsoever high they may be. The law is above them and action will be taken against. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
कोलकाता में कथित गैंगरेप का मामला, भाजपा ने ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगा। कोलकाता में एक कथित गैंगरेप की घटना के बाद राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। भाजपा विधायक शंकर घोष ने इस घटना को पश्चिम बंगाल सरकार की विफलता करार देते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से तत्काल इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने कहा कि ये केवल एक व्यक्तिगत विवाद या शादी के प्रस्ताव का मामला नहीं है, बल्कि एक सोची समझी और पहले से योजनाबद्ध घटना थी। शंकर घोष ने आरोप लगाया कि बंगाल में एक दिन प्रतिनिधि महिलाओं को अत्याचार की घटना बढ़ रही है और राज्य की बिगड़ती स्थिति के लिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि टीएमसी का चरित्र और महिलाओं के प्रति उनकी सोच इस घटना से उजागर होती है। उनका कहना था कि पीड़ित और उनके परिवार को धमकियां मिल रही है और आपराधिक सत्ता के संरक्षण में खुलेआम घूम रहे हैं। मुख्यमंत्री ने गैर जिम्मेदाराना रवैया से अपराधी को प्रोत्साहन मिला है और इसी का परिणाम है कि राज्य में अपराधी भी सुरक्षित महसूस करते हैं। शंकर घोष ने कहा, This is not about marriage proposal. I think this was quite pre-planned, and they initiate the incident through this kind of words. It is very shameful for our state, for every citizen of the Bengal, the way criminal activity, especially atrocity towards women, is increasing day by day. I don't have any word to say. If you go through the incident of Park Street, RG Kor, in case of Nodia, in case of Law College, everywhere you will see the brutality towards the women. And I always think this deteriorating culture of the Bengal is only for the irresponsible behavior of our Chief Minister. Whenever any kind of attack happened to the woman, her comment is very loosely addressed, encouraged criminals to repeat the thing. Even criminals feel safe under her regime. So this is the outcome, that party in power, the accused person and the other students who are the present running students of that college, they are giving threat to the girl that her parents will be arrested, her boyfriend may be killed. So this kind of threat can be given by a person who know what power he holds. There are several pictures is coming that this boy is within the power area of the Trinamool Congress. He has got several connection with different leaders. Even he got illegal admission through the recommendation of one of the known MLA from Bajbaj, and he is also getting his job through the recommendation of the governing body. How powerful he is, you can understand. So I think again this incident unmarks the character of Trinamool, their thought towards the women. I demand immediate resignation of Mamata Banerjee, the Chief Minister of West Bengal. Under her rule, no one is safe. Police is not cooperative with HCW. What? See, police is not cooperating with NCW. What we are seeing, this is the thing coming out. But the problem is that the police can't make any kind of step. They can't do or can't make any kind of step without the direction of
Trinamool Congress party in power. If TMC direct police to do this or not this one, what they will do? That's why they are not able to cooperating NCW, and it is quite shameful that the portion of police, they actually sell their spinal cord to the Kamak Street and Kalighat. So they know they can't do anything. Our government can't do anything apart from the police may be transferred from one place to another place. If you want to work, you can work. There are a lot of examples. Daimanti Sen, Jairaman Sahib, Nazrul Islam Sahib, they also work under this rule book. If they can work, why they are not able to work? As because police may have their vested interest, or they doesn't want to go in conflict with the ruling party, as because they have a fear they have to transfer from one place to another place. If police is try to go out from the situation, then the situation may become more worst. So thirdly, Arjika victim's father claimed that such incidents to occur in the state, it should be changed. Everybody wish so, and I think the justice of Arjikar is still pending. The investigation of CBI is also be questioned. Everybody has expected that the people who are behind the curtain, they should be unmasked in the Arjikar case, but yet it doesn't happen. So people have different kind of question regarding Arjikar. In case of this particular case, it is not about arresting 3 people, 3 students, but who pushed them, who make them so powerful that they can do anything. They direct principal, vice principal, they forcefully make sure that the security guard to be sit outside the campus. How powerful they are. Where from this power came? That question should be addressed, and in that case you will find that the leaders of the Trinamool are the most culprit. They are the most culprated component of this incident. For the leaders of the Trinamools, these people are getting more power and power to do such criminal activities. Are you going to raise your voice against this incident? Yeah, everywhere, and in our state today there will be a massive protest under the leadership of our state president Dr. Sukanta Majumdar in Kolkata, as well as in every district town. We will do the same, and we will continue the protest because the deteriorating situation cannot be changed without the end of TMC regime. So our target to secure women through the outstate of Mamata Banerjee. So what about the women claimed against rape case against Kartik Maharaj? See, I respect Kartik Maharaj. He is one of the men who raised his voice against this autocratic government. He tried to consolidate Hindu community, and I understood these kind of activities, as because it is going against the government. So this type of allegation is coming. Incident happened in the 2012 or 13. It is coming into the floor in the surface in the 2025. I think law will take its own course, but as he is not our party member directly, I can comment on him as a party member, but my support is always goes to Kartik Maharaj, and I know he will come out with clear. So what about the Kollar women? See,
it shows his taste specifically. Question is about, it is not about the friendship. The way Trinamool cadres is educated by the TMC leaders, it is the reflection of that kind of education through Kalyan Banerjee's statement. He is blaming the friends or the relationship among the students. Now he is ignoring the fact, the mentality of a leader, that is always come from the senior leaders. So they treat the leaders in this way. They are educated by this kind of leader. That's why they can do such a criminal activity, such a heinous activity to a friend. It is the clear indication the way Trinamool Congress leaders, they talk, they behave, they treat, they educated the cadres of the Trinamool Chhatra Parishad, the Trinamool Congress as a whole. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सीआर केशवन बोले, ममता बनर्जी महिलाओं की सुरक्षा के प्रति असंवेदनशील। सीआर केशवन ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनकी पार्टी टीएमसी पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है। केशवन ने सवाल उठाया कि कैसे एक महिला मुख्यमंत्री और गृह मंत्री होते हुए भी राज्य की पुलिस व्यवस्था इतनी असफल हो सकती है। उन्होंने बताया कि कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में हुए कथित सामूहिक बलात्कार में मुख्य आरोपियों में से एक टीएमसी छात्र परिषद का सक्रिय सदस्य था। उन्होंने ये भी सवाल उठाया कि एक टीएमसी सदस्य को कॉलेज में इतनी आसानी से कैसे पहुंच मिली, जबकि वे हर उस कॉलेज का छात्र नहीं है और वे छात्रों को बुलाने में इतना प्रभावशाली कैसे हुआ है। The dignity and security of our sisters and daughters are facing serious threat under Mamata Banerjee's misrule in West Bengal. And under the TMC regime, the state has become a living nightmare for women. This is because Mamata Banerjee has utterly failed to provide safety and protection to our sisters and daughters in the state. And the most startling fact is Mamata Banerjee above all is a woman. She is also the chief minister, and Mamata Banerjee is the home minister who controls the police department. Yet we have seen successive heinous incidents, committed and seen as atrocities committed against women like Sandesh Kali, and then we saw the most horrible rape which shook the conscience of the nation in the RG Kar hospital, and now we see this ghastly crime being committed in a law college affiliated to the government, and one of the main accused is a active TMC Chhatra Parishad member. Why is Mamata Banerjee so unsympathetic and insensitive when it comes to the safety and protection of women? Also, the important question being raised is, how is this active member of the TMC Chhatra Parishad has such unfettered access to a college where he is no longer a part of? And how can he summon students at will like this? Where is the source of his, undue influence? These are the questions which need to be answered. Also, the way in which TMC leaders have reacted to this horrible, ghastly crime is most appalling, shocking. TMC MP, when asked about women's safety, dismisses this as a political agenda. Look at the, twisted and distorted mindset of the TMC MP. How can people of West Bengal even hope to get justice when MPs and senior members of the ruling party make such appalling, incorrigible statements? It is very clear to the people of West Bengal that the daughters, sisters and mothers of West Bengal will never be safe under this dubious TMC regime, and under Mamata Banerjee, protection and safety has been a complete failure when it comes to women issues. I think the people have realized the only way to ensure and protect
the sisters and daughters of West Bengal is to throw out this TMC regime and Mamata Banerjee, which the people will do at the very soon opportunity. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश कुमार ने 21,391 पुलिस कर्मियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र सौंपे। बिहार की राजधानी पटना में एक भव्य समारोह के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 21,391 नए पुलिस कर्मियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है और नई पुलिस भर्ती इसके लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। नीतीश कुमार ने कहा कि इन जवानों से उम्मीद है कि वे जनता की सुरक्षा और सेवा में पूरी तरह निष्ठा से काम करेंगे। उन्होंने कहा कि समर्पण, ईमानदारी और अनुशासन पुलिस कर्मियों के लिए सबसे जरूरी गुण है। आकाश पांडे, हीरोलाल के बाद आकाश पांडे, अंकित कुमार, इसके बाद बढ़िया गए। अंकित कुमार, सोनू कुमार, प्रभाकर कुमारी, प्रभाकर कुमार, चंचल कुमारी इसके बाद आएंगी। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महिला कहीं भी सुरक्षित नहीं, वर्षा मिश्रा का बयान। महिला कार्यकर्ता वर्षा मिश्रा ने कोलकाता में 24 वर्षीय कानूनी छात्रा के साथ हुए कथित सामूहिक बलात्कार की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि छात्रा ने शादी से इनकार करने पर एक व्यक्ति और उसके साथियों द्वारा 3 घंटे तक पीटा गया, क्रूरता से बलात्कार किया गया और उसके बाद उसका वीडियो बनाया गया। वर्षा मिश्रा ने कहा, मैं हमेशा कहती हूँ कि महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, चाहे वे डॉक्टर हो या वकील। उन्होंने सुझाव दिया कि पेशेवरों को डिग्री देने से पहले चरित्र प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए और इसके लिए सभी बड़े शिक्षक संस्थानों में टीम का गठन होना चाहिए। देखिए, कलकत्ता में जो 24 साल की लॉ कॉलेज की छात्रा जो थी, उसके साथ उसके ही मिलने वाले एक मित्र समझिए, उसने अपने और साथियों के साथ और सहयोगियों के साथ ब्रूटल रेप अंजाम दिया है और उस छात्रा को सिर्फ इस बात की सजा मिली है कि उसने उस गंदी मानसिकता वाले इंसान से शादी करने से मना कर दिया। उसके खुन्नस में आके उसने अपने मित्रों के साथ उसके साथ गैंग रेप किया, सामूहिक बलात्कार किया, 3 घंटे तक लगातार उसके साथ मारपीट करी, बलात्कार किया और उसका लाइव वीडियो बनाया और उसको थ्रेटन किया कि उसको लाइव कर देंगे और सोशल मीडिया पे डाल देंगे और उस तरह से उसको थ्रेटन करके उसको ब्लैकमेल भी किया। तो अब इसमें यह है कि देखिए, मैं हमेशा से ये कहती रही हूं कि कहीं भी वुमन सेफ नहीं है। अब लॉ के स्टूडेंट और वो जो अक्यूज है वो ऑलरेडी लॉ की प्रैक्टिस कर रहा है और लॉ की प्रैक्टिस कर रहा है, क्रिमिनल लॉयर है जो खुद इस तरह की क्रिमिनल मेंटालिटी रख रहा है, वो और पीड़ितों को क्या न्याय दिलवाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस तरह की गंदी मानसिकता वाले, और मुझे तो लगता है कि हर प्रोफेशन में, डॉक्टर हो या लॉयर हो या किसी भी प्रोफेशन में डिग्री देने से पहले आप जब एक डिग्री देते हो, प्रोफेशनल डिग्री सारे इंस्टीट्यूट देते हैं, तो वो डिग्री देने से पहले उस इंसान या उस स्टूडेंट के चरित्र का भी एक सर्टिफिकेट लगना चाहिए, जो ऐसे लगता तो है लेकिन फॉर्मली लगता है, वो ऐसे ही साइन करके दे दिया जाता है। लेकिन बाकायदा एक ऐसी हर बड़े इंस्टीट्यूट में इस तरह की टीम होनी चाहिए कि वो पहले उसका वो
पता करे कि वो किस तरह की मानसिकता है, उस पर इस तरह के गंदे कोई इल्जाम नहीं लगे हैं या कुछ इस तरह की गतिविधि में वो इन्वॉल्व नहीं रहा है, उसके बाद उसको डिग्री देनी चाहिए। क्योंकि ये डिग्री लेके फिर समाज में खुले घूमते हैं और उसके पंजे में, उसके शिकंजे में कितने पीड़ित लोग जो सही में बहुत तकलीफ में होते हैं और अपने पैसा खर्चा करके इन प्रोफेशनल्स के पास जाते हैं, तो जो खुद ही इस तरह की मानसिकता वाला होगा वो किसको क्या न्याय दिलाएगा। और दूसरी चीज ये है कि वो जो पीड़िता है उसके लिए हमें मतलब ये कहते हैं कि स्त्री में एक सिक्स्थ सेंस होती है कि जो इंसान को पहचानती है, तो कहीं ना कहीं उसको सही बुरे की समझ थी, तभी उस लड़की ने उससे शादी के लिए मना किया। ये भी एक बात है। और दूसरी चीज ये है कि देखिए आज की दुनिया में लोग इतना प्रिटेंड करते हैं और लड़कियों को भरमाने के लिए, लड़कियों को बरगलाने के लिए इस तरह की बातें और इस तरह का बिहेवियर करते हैं कि उनकी जो असलियत होती है वो बहुत लेट सामने आती है बहुत। और वो भी समझने वाले समझ पाते हैं, कई बार उनका असली चरित्र तो समझ में भी नहीं आता है। तो उस लड़की के साथ जो भी हुआ और जिस तरह से हुआ वो बहुत दुखनीय है। और जब कानून व्यवस्था की पढ़ाई करने वाले ही इस तरह की गतिविधि करेंगे तो हम किसके पास जाएंगे। आज वही लॉयर बनेंगे, कल वही जज बनेंगे और वही हमारे जीवन के फैसले तय करेंगे। हमारी जीवन मृत्यु, हमारे कैद या कितने साल की सजा होनी है या क्या आप आरोपी हो नहीं हो या आपको जामीन मिलनी है कि आपको छोड़ देना है, वो ये तय करेंगे। इनके हाथों में कितने लोगों का जीवन होगा ये आप सोचिए। तो ऐसे जो अक्यूज होते हैं, स्पेशली मैं ये कहती हूँ कि जिनका समाज में एक स्थान होता है, चाहे वो नेता हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे प्रोफेशनल्स किसी तरह के हो, लॉयर हो, उनके ऊपर तो एक आम आदमी से ज्यादा कड़ी सजा होनी चाहिए। क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं, वो सारी कानून, सारे कायदे जानते हैं कि हमारे देश में किस चीज की क्या सजा होती है। उसके बावजूद इस तरह के दुष्कर्म करते हैं तो उनको तो सिर्फ फांसी से छोटी कोई सजा होनी ही नहीं चाहिए। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गोवा में माझी बस नई सार्वजनिक परिवहन सेवा शुरू। गोवा में परिवहन व्यवस्था में नई पहल की गई है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने माझी बस नामक नई सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की शुरुआत की है, घोषणा की है। इसका मकसद राज्य में सार्वजनिक परिवहन को आधुनिक, सुलभ और किफायती बनाना है। प्रमोद सावंत ने बताया कि इस योजना के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े वाले सभी निजी बस मालिकों को 3 रुपए प्रति किलोमीटर की सब्सिडी दी जाएगी, जिससे निजी बस संचालकों को प्रोत्साहन मिलेगा और यात्रियों को बेहतर सेवा मिलेगी। माझी बस न्यू पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम आज हमने इंट्रोड्यूस किया है। इस कार्यक्रम में मेरे साथ में हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर माविन गुजिनो और केटीसी चेयरमैन श्री उल्लास नायक तुएकर अलॉन्ग विद द डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट एंड MD, बाकी सभी प्राइवेट बस ओनर एसोसिएशन के मिस्टर तामनकर और बाकी सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्रांति लाने के लिए सरकार ने माझी बस स्कीम लॉन्च की है। इस बस के तहत सभी प्राइवेट बस ओनर अलॉन्ग विद द केटीसी वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। उनको हम 3 रुपीज पर किलोमीटर सब्सिडी दे रहे हैं। और सभी गोवा के लोग इवन दो जो टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं उन्होंने कार्ड लिया तो सेम सिंगल कार्ड पे इधर कदम्बा कॉर्पोरेशन और प्राइवेट बस ओनर पे वो ट्रैवल कर सकते हैं। मुझे निश्चित रूप से खातरी है कि मैक्सिमम सभी लोग यहाँ पे जो है वो डिजिटलाइज से और डिवाइस से बस ट्रैकिंग सिस्टम ये डिवाइस करके लोगों को ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, टूरिस्ट को ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए माझी बस स्कीम बहुत अच्छी चलेगी। इसलिए आज के इस अवसर पर मैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट मिस्टर माविन गुजिनो एंड एंटायर टीम एंड केटीसी उल्लास नायक तुएकर इनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। एक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में क्रांति लाने के लिए ये स्कीम गोवा सरकार ने लॉन्च की है। इसलिए प्राइवेट बस ओनर इनका भी गवर्नमेंट के साथ ऑन बोर्ड आने के लिए मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
जसपुर में कृषि बागबानी एक्सपो और क्रेता विक्रेता सम्मेलन शुरू। जसपुर में चल रहे कृषि बागबानी एक्सपो और क्रेता विक्रेता सम्मेलन को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अत्यंत महत्वपूर्ण बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये 2 दिवसीय सम्मेलन किसानों के लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित होगा, जो उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन की सराहना करते हुए कहा कि इस आयोजन में कृषि क्षेत्र की प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधि भी मौजूद है, जो किसानों से संवाद कर समझौता करेंगे। साथ ही जैविक खेती के क्षेत्र में हुई प्रगति पर भी विस्तृत चर्चा की जाएगी। किसानों को आगे बढ़ने में ये मील का पत्थर साबित होगा, इसलिए मैं पुनः जिला प्रशासन का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। और आप सबको मालूम है कि हमारा ये देश कृषि प्रधान देश है। हमारा ये छत्तीसगढ़ ये भी धान का कटोरा कहलाता है। आज करीब 80% लोग यहाँ पर कृषि से आधारित हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी संकल्प है कि हम लोगों को किसानों की आय को दुगुनी करना है और इसके लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना से लेकर फसल बीमा योजना, कृषक सम्मान निधि, ये सब भारत सरकार की तरफ से प्रयास हो रहा है। और हम लोग छत्तीसगढ़ में भी किसानों को आगे बढ़ाने के लिए एक तो 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीद रहे हैं, 3100 रुपया 1 क्विंटल में कीमत दे रहे हैं, अंतर की राशि को भी एकमुश्त दे रहे हैं। सिंचाई का रकबा भी पूरे प्रदेश में हम सब लोग बढ़ा रहे हैं। इसके साथ साथ ही हम लोग पशुपालन और हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर ये सब में भी ध्यान दे रहे हैं। और आप सब लोगों को मालूम होगा कि इस साल के बजट में हम लोग पशुपालन में ज्यादा बजट रखे हैं। बकरी पालन, सुअर पालन, मत्स्य पालन इस सब में ज्यादा बजट रखे हैं। और दूध उत्पादन को भी हम लोग इस प्रदेश में बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए अभी पायलट के रूप में 6 जिले को शामिल किए हैं, जिसमें जसपुर जिला भी शामिल है। इसमें हम लोगों को 2 मवेशी देंगे, गाय देंगे, अच्छा नस्ल का देहाती टाइप का साहिवाल। अभी 1 जून से कोंडागांव से हम इस कार्यक्रम को शुरू किए हैं और एनडीडीबी जो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड है उसके साथ सरकार का समझौता है। और ये लोग हमारे लोगों को कैसे गाय को रखना चाहिए, कैसे गाय को दाना पानी देना चाहिए, ये सब सिखाएंगे और दूध का भी वो लोग संकलन करेंगे। तो निश्चित रूप से किसानों का आय बढ़ेगा। और आजकल हॉर्टिकल्चर में भी, फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर इस सब में भी बहुत स्कोप है और जसपुर में तो बहुत ही स्कोप है। यहाँ पर आज यहाँ पर वर्षों से आम हो रहा है, लीची हो रही है, यहाँ पर कटहल भारी मात्रा में मिलता है और अब तो आपका सेव भी होने लगा है। अभी हम पिछले बार जसपुर आए थे तो कल्याण आश्रम के हमारे बंधु हमको सेव भेजे थे वहां पर, तो वो 3 तरह का 3 क्वालिटी का सेव बड़ा अच्छा हम सबको वहां पर काट कर खिलवाए भी थे। तो बड़ा अच्छा सेव भी है। चाय पत्ती की भी खेती हो रहा है। आप सबको मालूम है कि सोगड़ा उघड़ आश्रम में फिर सरकारी भी वो भी काफी मात्रा में चाय की खेती भी हो रही है। चाय की खेती अगर एक बार लग जाए तो 80 साल तक ये चलता है, मतलब दूसरे पीढ़ी तक ये मतलब उत्पादन देता है। तो इस सब में बहुत ज्यादा स्कोप है हमारे जसपुर में। और निश्चित रूप से जो 2 दिन का ये सम्मेलन है ये इनको आगे बढ़ाने में बहुत ही लाभकर होगा। यहाँ पर 2 दिन का ये सम्मेलन है, इसमें कई परिचर्चाएं होंगी। जैसे मैंने नाम लिया, हमारी जो कृषि के जो क्षेत्र में बड़ी कंपनियां हैं वो सबके प्रतिनिधि भी आप लोगों से बात करेंगे और आप लोगों के साथ एग्रीमेंट भी करेंगे। आप लोगों के फसल को ये लोग खरीदेंगे भी तो कीमत ज्यादा मिलेगा, काहे कि बीच में बिचौलियों का रोल नहीं रहेगा। सीधे कंपनियां खरीदेंगी तो ज्यादा कीमत भी मिलेगा। और साथ ही साथ आजकल जैविक खेती, ऑर्गेनिक खेती, इसका भी बड़ा प्रचलन और महत्व बढ़ रहा है। तो नाबार्ड और एपेडा जैसे जो संस्था हैं वो भी 1-2 दिन के अंदर में आप सब लोगों को कैसे सब क्षेत्र में, ऑर्गेनिक क्षेत्र में कैसे आगे बढ़ा जाए, इस पर आप लोगों से चर्चा करेंगे। कुल मिला के मैं हमारे जसपुर जिले के किसान बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और
जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून में ऑल इंडिया ऑयल सेक्टर मीट आयोजित। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में देश के प्रमुख तेल और गैस क्षेत्र की बैठक ऑल इंडिया ऑयल सेक्टर मीट का आयोजन किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिकृति गैस और ONGC क्षेत्र में व्यापक शोध कार्य और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग हो रहा है। धामी ने बताया कि इस क्षेत्र में नई तकनीकी और बेहतर प्रौद्योगिकी के माध्यम से अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और तकनीकी विकास के बीच संतुलन स्थापित किया जा रहा है। उनका मानना है कि इन प्रयासों से भारत इस क्षेत्र एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरेगा। प्रधानमंत्री जी के बनने के बाद दुनिया के अंदर प्राकृतिक गैस और ऑयल के क्षेत्र में हमारे देश में अनेक अनुसंधान के काम, अनेक साझेदारियां दुनिया के देशों के साथ भी है और ऑयल के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम इसी के माध्यम से भी हो रहा है। और आज ये ऑयल मीट यहाँ पर आयोजित की गई है, इसमें पूरे देश भर के लोग यहाँ आए हैं निश्चित रूप से। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश। दिल्ली में मौसम ने ली करवट। राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में आज सुबह से ही हल्की सी मध्यम बारिश देखने को मिली। बारिश के चलते तापमान में गिरावट आई है और लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। हालांकि बारिश के कारण कुछ इलाकों में जल प्रभाव और ट्रैफिक की जाम की स्थिति भी पैदा हो गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 24 से 48 घंटों में और बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोलकाता लॉ कॉलेज में कथित गैंगरेप के बाद परिसर में CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं। कोलकाता के साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में 25 जून की शाम को हुई कथित सामूहिक बलात्कार की गंभीर घटना के बाद अब सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती बरती जा रही है। कॉलेज परिसर में अब CCTV कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर नजर रखी जा सके और निगरानी तंत्र मजबूत किया जा सके। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पुरी में रथ यात्रा के दौरान अदानी समूह की प्रसाद सेवा की शुरुआत। पुरी ओडिशा में रथ यात्रा के पावन अवसर पर अदानी समूह ने एक सराहनीय पहल शुरू की है। समूह के चेयरमैन गौतम अदानी अपनी पत्नी डॉक्टर प्रीति अदानी के साथ इकॉन किचन पहुंचे, जहां उन्होंने तीर्थयात्रियों को स्वयं भोजन वितरित किया। अदानी समूह ने 26 जून से 8 जुलाई तक रथ यात्रा की संपूर्ण अवधि के दौरान प्रसाद सेवा कार्यक्रम की शुरुआत की है। हरे राम बड़ा मुश्किल महाराज बाहर उठी बड़ा मुश्किल छाड़ीले से जिबे छाड़ीले लड़े बना से चलो चलो आ गया अरे ये सोल्ला करो बाबू जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ आइए ये सब सिस्टम जय जगन्नाथ हरि बोलो लड़के साइड
आप दोनों मिलकर परोस रहे हैं वेरी ओडिया डिश। अब वक्त तो चला है दर्शकों छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे सहयोगी मिनल के साथ देश की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच